I mean, अगर 10,000 उनका 10,000 सीट्स है या 10,000 कॉम्बिनेशन में से अगर वो एक सिलेक्ट करते हैं और वो कमर्शियली वाइबल लगता है उनको, वो इसलिए होता है उसमें क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वो एक ही जगह के लिए तैयार होगा तो फिर वो वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन कैसे बनेगा? हाउ विल एवरीबडी सेल दैट? ने वो गलती तो खाई होगी कोई ना कोई, तो पूछ के लगा लें। ओके यू माइक can speak better on rootstocks because he's the rootstocks जो हैं, और पूरे आप सोच के देखिए, पूरे अमेरिका में सारी सैंडी सॉइल्स नहीं है, सब तरह की हैं। और जब भी कोई रूटस्टॉक सेलेक्ट होता है, कम से कम 8 डिफरेंट लोकेशंस में टेस्ट होता है। उसमें इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि कौन सी तरह की सॉइल है। तो आपने जो सवाल पूछा बहुत बढ़िया। अभी ये रूटस्टॉक्स में डेवलपमेंट डिजीज के लिए, और वाकई कॉर्नेल में सेलेक्ट हुए हैं। सारे रूटस्टॉक वाशिंगटन स्टेट में नहीं चलते, जहाँ पे 80% से ज़्यादा एप्पल होता है। तो इन सॉइल्स में वो काम करेगा कि नहीं। कुछ रूटस्टॉक्स जो हैं, जो विगरस हैं, जो कि क्ले सॉइल पे ऑलरेडी काम करते हैं, वही लेके आएंगे। जो यहाँ काम नहीं करेंगे उनको करने का फायदा नहीं। जैसे कि बहुत ही जो ड्वार्फ हैं, 41 हो गया जैसे जुजीवा 41, उसको अगर आप यहाँ लगाएंगे तो चलेगा नहीं अगर आपकी क्ले सॉइल है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। We have aspect problem. So I think if we do not have that aspect, सर ऐसा है, I would say behavior of these rootstocks in such aspects, because sunlight is the main criteria. सर एस्पेक्ट का तो ऐसा है कि मैंने भी काफ़ी देखा हुआ दुनिया में, कहाँ आपको लगता है ऐसी जगह कोई नहीं। तो इसकी खासियत है इस जगह की, ऐसे आपको लगता है यहाँ पे एस्पेक्ट में सबसे फिर भी रोशनी तो आती है, इसलिए कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, और कोई इलाज नहीं है। रूट स्टॉक से आपका मैनेज होता है आर्किटेक्चर, जिससे कि आप लाइट मैक्सिमम। Like to take these issues with you people. So the thing is that most of us who are shifting to the, I would say, rootstocks in one or other way, maybe for high density plantations, maybe to harvest more resources of the soil, maybe to have better, I would say, production than less holdings. So these are the questions. So these are the issues which we really want to, I would say, solve on. Ultimately, this will lead to the production, because we do not want to experiment time and again and face problems. We don't want to learn from failures. सर फेलियर के बिना तो सीखा जाता है। No, but every person, look, every grower here is not supposed to say experiment and then get it. तो सर वही बात हो रही थी कल, डॉक्टर शर्मा से भी बात हुई थी। गुड इवनिंग। सॉइल वाला जो कह रहा है ना, suitability of the root soil, I'm not a scientist, I'm just a practicing farmer also. This is just not an issue with regard to, except the one which is highly dwarf that may have problems with a weak root system. Otherwise, rootstocks all, M9, MCDs and Geneva seeds are going to be suitable for all kinds of soils. You have to manage the soil, that's the issue. I have 2 orchards here, one is sandy area and another is very thick, very deep soils. You visited it. The rootstock M9 is doing exceedingly well in both locations. The problem here is, the issue which you will face in encountering rootstock in the plant development is, if you have a highly porous soil, you have to make it slightly thicker. So what you do, you manage it, put a lot of biomass, put a different kind of soil and you manage it. Because it's a small tree, it has a very small shallow root system, so you can easily manage it. So it's not a big deal at all, you don't have to bother about it. The request is that kindly switch over to the rootstock. Yes, sir. Base management. That's it. The suitability of rootstock aspect is not an issue. If you have a very, very low sunlight, the issue is going to be growth, number 1. Number 2, the color. Number 3, the growth of the plant is not going to be issue. In the summers, you will have enough sun. Problem is going to be sun, due to aspect will be, sun will be less in the winter. There it may become very chilly, but then chilling is not a problem for that. So what is important for you is whether you have sunlight in summer or not, that you do have everywhere across the field. This is not an issue at all. So I think this answers the question. The bald people cap is very good. I would like our president to. I would like Mr. Dikshit Chauhan to honor Dr. Amit Dhingra. I would like Mr. Dimple Pashta to honor Tim O'Brien.
would like Mr. Karan Datta to honor our sponsors. Do we have Mr. Bhaskar here? Or maybe you, either of you two can come on stage and take the cap for him. So now I'd like. सबसे पहले तो देवभूमि के सब वासियों को शत प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि 17 साल बाहर रहने के बाद मुझे आज मौका मिला है अपने किसानों के साथ बात करने का। मैं क्रेडिट दूंगा जो वाशिंगटन स्टेट में जो किसान हैं जिन्होंने मुझे सिखाया हॉर्टिकल्चर के बारे में, और सौभाग्य ये है कि आज वो जो सीखा हुआ है आपके सामने लेके आ सकता हूँ, और जो उनके साथ काम करके जो सोल्यूशंस निकाले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और हो सकता है वही कोशिश हमारी है कि वही सारी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में 1-2 साल में ला दे, ताकि आप जो पिछले 60-70 साल का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकें अगले 3-4 साल में। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा थोड़ा संकल्प भी है, और इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन का, और उससे भी ज़्यादा मिस्टर जेसी शर्मा का, कि जो पॉलिटिकल विल है आपके पीछे। कभी मतलब फार्मर्स तो करना चाहते हैं हमेशा, फार्मर्स जो हैं वो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। आप लोग मिरेकल करते हैं, हर साल फसल निकालते हैं हर चीज़ की, यहाँ पे एप्पल्स, और अब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ऑर्किड्स देख रहे थे, तो ये एक मिरेकल ये किस तरह से आप फल तोड़ते हैं बाकी इंडिया तक पहुँचाते हैं। तो आपको शत प्रणाम इस बात के लिए। तो मैं आपसे मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा, आई होप ठीक है, बीच में थोड़ी इंग्लिश डाल देंगे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो एक और चीज है कि अगर आपको सवाल पूछने हैं या तो आप लिख लीजिए, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी बैठ के कि जैसे कुणाल के कुछ पॉइंट्स थे आप पूछ रहे थे उनसे, तो हम एंड में चारों लोग आपके आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि बीच में मेरे को सवाल पूछना ही पूछना है तो प्लीज हिचकिचाइए मत। और हाँ, अगर आपका सेल फोन बोला तो मैं पिक कर लूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि प्रेसिजन फार्मिंग आ गई है अमेरिका में, सारे देशों में प्रेसिजन फार्मिंग आ गई है, क्योंकि अगले 20-30 साल में हमें 10 बिलियन लोगों को खाना खिलाना है। वो कैसे करेंगे? और ये जो है एक प्रोग्रेस हो रही है साइंस के अंदर कि जहाँ पे आप कम से कम इनपुट डाल के मैक्सिमम जो है उससे आउटपुट लें। ये कॉन्सेप्ट जो है प्रेसिजन फार्मिंग का पिछले 3 से 5 साल में बढ़ता जा रहा है। और अगर हमें अपने देश को क्या बोलते हैं, अपने देश को अपने पे ही निर्भर करना है अपनी प्रोडक्शन पे, तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। और हमारे पास 50-70 साल नहीं है वो चेंज लाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे भी, बाकी देशों में भी। खाने की अवेलेबिलिटी, फ्रूट की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसमें फायदे बहुत है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जब आप प्रिसीजन लाते हैं किसी भी चीज में तो एफिशिएंसी बढ़ती है, जब एफिशिएंसी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि जब भी हम चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आज पूछूं कौन चेंज में हिस्सेदार होना चाहता है, तो वो मुश्किल है। सब चेंज चाहते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कई बार नहीं करना चाहते। तो वो चीज प्रेसिजन फार्मिंग अब आ गई है, चाहे आप इसको करें ना एक्सेप्ट करें ना करें, पर ये होके रहेगी। तो जो हमने वहां पे शुरू किया पिछले 10 साल पहले, जब मैंने वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना प्रोग्राम शुरू किया, तो मेरा मकसद, मेरे को एक गोल दिया गया था कि फार्मर्स की हेल्प करनी है। अब फार्मर्स की हेल्प 2 तरह से हो सकती है, सपनों में, ख्यालों में और अपनी लैब में बैठ के, या दूसरा जो मैंने किया, फार्मर्स के साथ ट्रैवल किया, उनसे पूछा जाके 3-4 साल की आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कहाँ पे पिंच होता है, कहाँ पे हम आपका टाइम सेव कर सकते हैं, कहाँ पे हम आपके इनपुट सेव कर सकते हैं। तो सब बातों की एक बात लगी, सिर्फ वॉशिंगटन में है, कैलिफोर्निया में, ऑरेगन में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, जहां जहां मैं ट्रैवल किया, एक ही सवाल पूछा था कि आपका पिंच पॉइंट क्या है। और अगर आप, मैं तो बताऊंगा आंसर, अगर आपको लगता है ठीक है नहीं, उनका एक ही आंसर था कि नए रूट स्टॉक आ गए, नई वैरायटी आ गई, पर हमें 5-5, 10-10, 20-20 साल वेट करना पड़ता है इन चीजों के लिए, क्योंकि रेगुलेशंस, जैसे कुणाल बता रहे थे, वहां पे अब मुनाफेदार नहीं रह गया है। वो सारा वहां का रेगुलेशंस इंडिया एक्सपोर्ट होता है, और जो एवेंस फ्रूट है
जो इसके रेड को उगाते हैं। बताएं कितने लोगों के कितने बहुत पौधे मरे हैं जो बेयर रूट ट्रीज मरे हैं? किसी के नहीं मरे। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, गलती आपकी नहीं है, वो सिस्टम ऐसा है। और यही कहानी वहाँ पे भी है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आप एक अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने देखोगे, ये मत सोचिए अरे मेरे नेबर को पता चल जाएगा मेरे पेड़ मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पेड़ मरते हैं, अमेरिका भी मरते हैं। तो बात यह है कि हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उसको कैसे चेंज किया जाए जिससे पेड़ ना मरे बेसिकली। और जो वैरायटीज पुरानी हो चुकी हैं, अगर आपको रिन्यू करना है, जैसे अभी हनी क्रिस्प का बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा होता है, अगर आपको हनी क्रिस्प लगाना है और अगर आपको 5-10 साल तो वेट ही करना पड़ गया उन पेड़ों के लिए, तो क्या फ़ायदा होगा? आप अपने ऑर्चर्ड थोड़ा ना उखाड़ देंगे। और वैसे भी एक चीज़ और थी कि ऑर्चर्ड जब भी आपने हमें फ़ोन मेरे को देता था मेरे को अपने क्लास में स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है, अगर किसी का फ़ोन आया तो मैं उठाऊंगा, तो वो इसलिए मैंने वही कोशिश करी थोड़ी सी यहाँ पे। और बाकी दूसरी बात है कि जो जैसे नए रूट स्टॉक आ रहे हैं, नई डिजीजेज आ रही हैं, उसके लिए पुरानी चीज़ें तो यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग। वैरायटी भी यूज़ नहीं कर सकते और नई रूट स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए रूट स्टॉक बनते रहते हैं क्योंकि बीमारियां भी बढ़ती रहती हैं, नए नए फंगस आ रहे हैं, नए नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, उनको कैसे काउंटर करेंगे? तभी जो साइंटिस्ट का प्रोग्राम बहुत साल चलाते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे कि अब देखिए, आप अगर मक्के का सीड लगाएंगे आपको 3 महीने में 1000 सीड मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। और ये जो एप्पल का ट्री हम बनाते हैं, जो पूरा प्रोसेस है, वो 10 से 12 साल लग सकते हैं। उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि ऐसा कब जो होता आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको वायरस फ्री मटेरियल मिला, ये भी बहुत बड़ी बॉटल है। पहली बात तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वायरस टेस्टिंग सिस्टम नहीं, बहुत कंट्रीज में नहीं है। अमेरिका में एटलीस्ट रूट स्टॉक जो है वायरस फ्री होना चाहिए और वैरायटी वायरस फ्री होनी चाहिए। अगर आप रूट स्टॉक नर्सरी, फिनिश ट्री नर्सरी से जब तक आपको ऑर्चर्ड में पेड़ मिलेगा, आपको 10 साल लग जाएंगे उस प्रोसेस में। और जो लोग टिश्यू कल्चर यूज कर रहे हैं, काफी लार्ज जो यूज करती हैं, जो कि इनएफिशिएंट सिस्टम, रूट स्टॉक्स उगाते हैं इस सॉइल में। काफी 2 तरह के मेथड्स हैं बेसिकली। माउंटिंग एक मेथड है, इसमें 1 से 4 साल तक आप उसको रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई करते हैं और अंत में जो है उसको हार्वेस्ट करते हैं। आप पहली बात तो उसमें 2-3 चीज़ होती हैं। आप उसको पानी देना चाहिए ठीक से ताकि हेल्दी रहे, लेकिन वो हो नहीं पाता कई बारी। और जब आप उसकी रूट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दूसरा बात कैलिपर जो है यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। जब आप उसकी बड़े करें, उसमें ऑलरेडी कुछ ट्रायल हो चुके हैं और जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उनके पास M9 काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइटोलॉजी से जो कंपनी है, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं नर्सरी बिजनेस को और वैरायटीज भी नहीं बना रहे हैं जो कि फार्मर्स यूज कर सकते हैं। तो हम किस तरह से कर रहे हैं ये सब? हम लोग फास्टर प्लांट्स बनाते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में और हाईएस्ट क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, आपने देखा आप 4 साल में 100 पौधे बना सकते हैं एक पौधे से। हम एक पौधे से 5 पौधे बनाते हैं हर 4 हफ्ते। तो अगर आप लगाएं मल्टीप्लिकेशन रेट हमारा जो है 3 से 5 गुना हर 4 हफ्ते में होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है उस हिसाब से। और वो बार अगर हम लगा दें कि 1 साल में कितना उसमें पौधा निकलता है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्चर्ड हैं, उनको सारे पौधे एक साथ ही लगाने चाहिए ताकि लोग बिजनेस सेंस करें। तो वही टेक्नोलॉजी जो है यहाँ भी लेके आना चाहते हैं। ऑफकोर्स इसको करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, एग्रोनॉमिक, कंज्यूमर, एनवायरमेंटल। अगर आप जब आप चीज़ सॉइल में उगाते हैं तो आपको केमिकल डालने पड़ते हैं पैथोजन कंट्रोल करने के लिए, हमें नहीं करना पड़ता क्योंकि सब क्लीन एनवायरमेंट्स में। हम चाहते हैं कि हम नंबर 1 मार्केट लीडर बन जाए इस एरिया में, नॉट जस्ट यूएस में लेकिन ग्लोबली, जहाँ पे ये तो सिर्फ अभी हम लोग 11 क्रॉप पे काम करते हैं। एप्पल, पेयर, चेरी पे सबसे ज़्यादा जोर है इस वक्त, ग्रेप्स पे भी, हॉप्स पे भी, हेज़लनट पे भी। तो इन चीज़ों में काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो हमने जो प्रोसेस जो हमारा एम्पलीफाइड प्रोसेस जो है वो सब चीज़ों पे लागू हो सकता है। सीरा गोल्ड और कार्टन प्लांट्स में आप देखेंगे कि हमारा रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा बड़े प्लांट्स देते हैं और कैलिपर उसमें नॉर्मल होता है, लेस देन 1% मोर्टेलिटी और 100% गारंटी। ये सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लगता है टिश्यू कल्चर पेपर लगता है लोगों को बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ पौधे ही तो डालने जल में, कौन सी बड़ी बात है। तो वो हमने चीज़ें थोड़ी चेंज करी क्योंकि फार्मर्स ने देखा कि ये नहीं हो रहा है जो बाकी लैब्स हैं। और दूसरा के बारे में साइंटिस्ट सोचते हैं छोटी मोटी चीज़ कौन करेगा।
लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन से ये रहा कि किस तरह से हम जिस काम के लिए मुझे वहाँ हायर किया गया कि फार्मर्स की हेल्प करनी, तो इसलिए इस चीज़ की तरफ आगे बढ़े। अब मैं कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा अपने प्लांट्स की परफॉर्मेंस की जो फर्टिलाइजेशन से निकले हैं। अभी जो फोटोग्राफ देखेंगे वो 20 लाख रूट स्टॉक चेरी का काम है, और जो कॉम्पिटिशन तो पौधा तो अपने आप उगेगा। अगर आप एक बड स्टिक लगाएंगे उसके अंदर, तो पौधा पहला टाइम तो उसमें रूट बनाने में लगाएगा, क्योंकि उसके बिना न्यूट्रिशन तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि रिजर्व्स तो आपने सारे छीन लिया उसके, तो वो ग्रो कैसे करेगा। ये सारे बडेड आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म हेल्दी कैलिपर है सब में। और ये अभी रिसेंटली बिल्कुल लास्ट हफ्ते फोटोग्राफ, या मैं टिम से हिंदी में पूछ रहा हूँ सॉरी। अब देखिए बिल्कुल ये लोग वेब्स बना रहे हैं बिकॉज मैकडूगल्स ये क्विंसी में प्लांटिंग हो रखी है, जहाँ पे सॉइल थोड़ी सी क्ले बाय द वे, सारी रेती सॉइल नहीं है। तो यहाँ पे ये पौधे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर गए। और ये अप्रॉक्सीमेटली ये पौधे जो हैं 6-7 फीट के हैं, क्योंकि ये डेविड चेजम जो हैं उनके साथ काम करते हैं, 6 फीट के आदमी हैं। तो ये जो पौधे की परफॉर्मेंस देख के जितने भी लोगों ने अभी तक हमने 3.5 लाख पौधे बेचे हैं अपने इस प्रोसेस से लास्ट ईयर, और अब जो है 7 लाख बुक हो चुके हैं, और आगे 2017 हमारा टोटली सोल्ड आउट है, और 2018 में हमारी उम्मीद है हम आपको ही पौधे देना शुरू कर देंगे। सर्टिफाइड ट्रू टू टाइप आइडेंटिटी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और प्रॉपर रूट सिस्टम है। तो कोई भी काम टीम के बिना नहीं होता है। तो मैं आपको जरा टीम दिखाना चाहता हूँ, हमारे पीछे कौन कौन लोग हैं, कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके आ रहे हैं, कैसे हम इसको वर्ल्ड ओवर लेके जाना चाहते हैं बेसिकली। तो आप मेरे को तो जानते ही हैं, टीम को भी जानते हैं। हमारे पास हमारे जो CEO हैं केन हंट, इन्होंने पहले भी कुछ कंपनियां बना के पूरी मतलब स्केल अप करके, जिसमें ऑलमोस्ट 30 या 40-50 मिलियन डॉलर का उसमें रेवेन्यू होकर इसको आगे कंपनियां बना के उन्होंने बेची हैं, उनको आगे बजर में किया है। हमारे पास CFO हैं जो हमारे फाइनेंसेस देखते हैं, लीगल टीम है, और हमारे ऑपरेशन ऑफिसर वाले जो हैं वो टाव एग्रो के साथ पिछले 15 साल से काम करते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो हैं, ये जो जॉन रायल्स और एक बड़ी बड़ी कंपनियों को के CEO हैं, और जैक स्नाइडर को शायद जानते हैं, वहाँ C&O नर्सरी के CEO हैं, ये शुरू से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो हमें मतलब इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और डग हेमली सबसे बड़े पेयर ग्रोवर हैं कैलिफोर्निया से, और ये कुछ इनमें से इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे साथ। आपने बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड में आपने विन गोगल को आप जानते ही हैं, नील मैनली जो विलो ड्राइव नर्सरी से हैं, पीट रेंगल को जानते हैं, और बाकी और काफ़ी लोग साइंटिस्ट और कुछ फार्मर्स जो हैं इस एडवाइजरी बोर्ड में। तो इस मोड पे मैं थोड़ा सा ट्री फ्रूट एक्सटेंशन लीडर है, जो कि बहुत बार ये अच्छी चीज से ही होते हैं। या तो आप सोल्यूशन इंजीनियर कर सकते हो, या जेनेटिक्स से आप अच्छी चीज बना सकते हो, जो कि यू कैन ग्रो अ सोल्यूशन। और मेरा मकसद रहता है हम दोनों को क्यों ना जोड़ दें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले और टाइम बचे। तो जैसे कि अब इंजीनियर सोल्यूशन करना, आपने ट्रेलिस सिस्टम आ गया, नए हार्वेस्टर आ गए, लेकिन उसके लिए आपको बेटर रूट स्टॉक भी चाहिए, बेटर आर्किटेक्चर भी चाहिए। तो ये जो स्लाइड है, ये काफी लोगों ने आपने देखी होगी। ये जो साइज है ऑर्चर्ड का, ये सीडलिंग साइज है 100% ग्रोथ। और ये जो पुराने रूट स्टॉक थे, मॉर्निंग रूट स्टॉक और ईस्ट मॉर्निंग रूट स्टॉक, उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जिनेवा रिलीजेस आए हैं, जो कि प्रोग्राम 1960s में शुरू हुआ था, उसके जो सारे रिलीजेस आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई आपको कौन से शेप का साइज और किस साइज का ट्री चाहिए। इसमें आप देखें कि M9 जो है, M9 बहुत ही छोटा है ट्री, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि M9 चलेगा कि नहीं यहाँ पे, या जिनेवा 41 चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पेड़ हैं, कमजोर हैं। और अगर आपकी मिट्टी जैसे क्लेई है, अगर आप उसको रेत नहीं डालते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि में ज्यादा जान नहीं है चीजों में। इसलिए जैसे 214, 202, 890 ऐसे वाले पेड़ स्टॉक हैं। लेकिन अगर बर्ड को क्लीन नहीं आती तो कोई फायदा नहीं, वो वायरस उसमें आ जाता है, ये वायरस सेंसिटिव है। यूरोप के अंदर इट इज इलीगल टू यूज वायरस और जिसमें जो क्लीन नहीं है वो वुड आप यूजिंग दिस, इट्स इलीगल। ये लार्ज M9, ये जो इधर वाला स्वीट क्लास है, ये जो रूट स्टॉक में जान काफी है, इसमें विगर काफी है, ये वो रूट स्टॉक्स यहाँ पे काफी चल सकते हैं। और हमने देखा कि काफी सारी डिमांड पे M9 पे चल रही है, 111 पे चल रही है, वो बड़े पेड़ हैं, आपको जोरदार पेड़ चाहिए, पर उसमें शायद इतना टॉलरेंस नहीं हो, या थोड़ी बहुत हो भी सकती है।
और ग्लोबली एफिड रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और फाइटोलॉजिस्ट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ग्रो भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कॉर्नर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि जो उनके नए रूट स्टॉक आए